Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to our daily 9 p.m. session. Where we are going to talk about TCS. So, in our previous session, where we talk about TDS, tax deduction at source, which is a part of direct taxes. In this particular session, where we'll talk about the TCS, tax collection at source, right? So it is a form of indirect taxes basically, which is charged by the sellers on buyers, right? So there are few commodities or there are few goods and services where TCS is applicable. तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं एरियाज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? सो कौन कौन से एरियाज आपके हैं जहां पे TCS आपका एप्लीकेबल होता है, जैसे like there are some commodities like liquor in consumption nature, like sale of cars, any tobacco product, even in foreign remittances also, where the threshold limit is 7 lakh rupees and above, right? सो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पे सेलर आपका बायर से टीसीएस, जो कहीं ना कहीं जो अदर टैक्सेस हैं उनके अलावा एक एडिशनल टैक्स के रूप में आपका चार्ज किया जाता है, राइट? सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वन. सो मेनी यूजर्स और कैंडिडेट दे हैव अ like confusion between TDS and TCS. Both are different, right? तो कल का सेशन आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है? तो वो कैसे आपका काम करता है और ये आपका आज के उसमें कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन. So, a tax collection at source is an additional amount collected as tax by a seller of specific goods from the buyers at the time of sale over and above the sale amount and is remitted to the government account. ठीक है? So, as simple one. ठीक है? So TCS is the tax collected by seller from the buyers on sale of so that it can deposit with the government authorities. Section 206 subsection C of Income Tax Act govern the goods on which seller has to collect taxes from the buyers. Like as we have a case of your like foreign remittances. So there was one scheme called LRS. I hope you guys remember this, ठीक है? क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आपका कर लिया है, ठीक है? So liberalized remittance scheme 2004. So the limit is कितना है इसका पर लिमिट आपका financial year, like it is 2.5 lakh US dollar per financial year, ठीक है? So the present limit is. So this scheme is a subject matter of TCS deduction where the threshold limit is rupees 7 lakh. मतलब अगर आप एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी परमिसिबल एरियाज आपके थे, ठीक है, विच वर पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ LRS स्कीम, ठीक है, if you remit more than 7 lakh rupees in a financial year, so you have to pay TCS to the TCS will be charged by the authorized dealers or collected by the authorized dealers, and they'll, because they are seller in that particular case, and they'll deposit with government. ठीक है? तो जैसे suppose that there is a person who remitted 20 lakh rupees in a financial year, ठीक है? एक financial year में उसने 20 lakh rupees आपका remit किया फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है? वहां पे अलग अलग एरियाज हैं फॉर एजुकेशन, like for education purpose where the loan is taking from the domestic institution. कोई अगर जैसे इसने 20 लाख रुपए एजुकेशन के लिए आपका रेमिट कर रखे हैं, ठीक है, बट और इसने ये 20 लाख रुपए का लोन किसी इंडियन बैंक से लिया, सो टीसीएस रेट विल बी 0.50%, ठीक है? अब दूसरा, अगर ये आपका मेडिकल पर्पज के लिए कर रहा है, सो इट विल बी 5%. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू इट इज 20%, ठीक है, नॉर्मल केसेस में आपका, ठीक है? सो 20 लाख रुपीस आपका इसने मेडिकल पर्पज के लिए किया, सो -7 लाख विच इज थ्रेशोल्ड आपका, ठीक है? सो रिमेनिंग अमाउंट इज हाउ मच? 13 लाख. सो 13 लाख का 5% इन केस ऑफ मेडिकल, ठीक है? तो आपका मेडिकल के केस में आपका 10. एजुकेशन के केस में आपका अगर ये लोन इसने किसी इंडियन बैंक से लिया है तो 0.5. एंड अदर जैसे टूर एंड ट्रेवल रेमिटेंसेस जो हमने पढ़े थे वहां पे आपका 20%, ठीक है? तो इस तरीके से अलग अलग रेट के साथ. अब जैसे सपोज दैट यू परचेज अ लग्जरी कार वर्थ रुपीज 30 लैक्स, ठीक है? तो 30 लाख रुपए का आपने कार परचेज किया, ठीक है, जिसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है इतना, तो इस पे 1% का यू हैव टू पे
TCS आपका, ठीक है। या आपका कोई अदर प्रोडक्ट जैसे अलग से 10 ड्यू लीव्स हैं, या फिर आपका लीकर इन कंजम्पशन नेचर, टोबैको इन कंजम्पशन नेचर, तो ये सारे आपके जहां पे TCS एप्लीकेबल होता है एज पर सेक्शन 206 आपका ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। सो आई विल शो यू द लिस्ट आल्सो, ठीक है। एंड इट इज मैंडेटरी टू कलेक्ट बाय द सेलर्स, if they'll not collect, so there is a penalty also, right? So if tax collector does not collect or remit TCS on time, they may incur 1% monthly interest penalty, ठीक है। तो इसलिए वो आपको करेंगे। टैक्स कलेक्टर must submit quarterly TCS return form 27 EQ and provide TCS certificate to buyers also। तो यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट आपका दिया जाएगा वो आपका बायर्स को। तो here we have a list, जैसे कहाँ पे लगता है, अगर आप ये बात पूछेंगे, ठीक। सो टाइप ऑफ गुड्स एंड ट्रांजेक्शंस एंड रेट, जैसे लीकर ऑफ एल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस 1% आपका, ठीक है। टिम्बर वुड आपका अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5%, 10 ड्यू लीव्स आपका 5%, ठीक है। टिम्बर वुड बाय एनी अदर फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट लीज 2.5%, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन 10 ड्यू लीव्स 2.5%, स्क्रैप आपका जो कबाड़ बेचा जाता है 1% आपका, ठीक है। मिनरल्स लाइक आपका ये 1%, एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो 10 लाख इज बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। तो लेट्स से 30 लाख का था तो 10 लाख विल माइनस 20 लाख पे आपका 1%, ठीक है। या जैसे हमने आपका LRS की स्कीम में हमने बात किया उस कुछ उस तरीके से जो आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। सो LRS में अगर हम लोग बात करें, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन LRS scheme. So the limit earlier it was 0.50% and 50%, ठीक है। 5%, ठीक है। तो पहले आपका मतलब, पहले का मतलब विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 आपका जो 5% का थ्रेशोल्ड था दैट इंक्रीज टू 20%, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड एजुकेशन पर्पस, ठीक है। उससे पहले आपका सिर्फ 5% आपका हुआ करता था विच गेट इंट्रोड्यूस इन 2020 इटसेल्फ, ठीक है, एंड विच बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2023 से आपका, ठीक है, ये जो लिमिट है इसको बढ़ाया गया, ठीक है। So now TCS where we have threshold limit is same 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए तक अगर आप रेमिटेंसेस करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं फॉर ट्रेवल पर्पज, फॉर मेडिकल पर्पज, फॉर एजुकेशन पर्पज, देयर विल बी नो TCS। बट अगर आप इससे ऊपर करते हैं, किसी ने 10 लाख करा तो 3 लाख रुपए के ऊपर उसको TCS पे करना पड़ेगा एज पर द कैटेगरी। इफ इट इज फॉर मेडिकल पर्पज 5%, इफ इट इज फॉर एजुकेशन लोन वेयर द सोर्स ऑफ फंड इज loan from any domestic institution or banks, ठीक है, and for travel purpose it is 20%, ठीक है। Was raised from 5% to 20% as per budget, except for education and medical reasons. This will be extended to international travel आपका exceeding money abroad and other sources, ठीक है। तो ये आपका this rule was planned for July 1st 23 but it get implemented from the with effective from 1st October 2023 itself, right? So this is all about TCS. तो TDS and TCS आपका पहले क्लास TDS के ऊपर था टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां पे जो आपका पेयर है बेसिकली जो सैलरी पे करता है या जो भी आपका पेमेंट कर रहा होता है वो अपने सोर्स पे ही जो पेमेंट है उस अमाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं एंड उसको गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। एंड TCS इज जहां पे बेसिकली इट इज collected by the seller from buyers on some specific goods in transaction which are mentioned under 206 subsection C आपका, ठीक है। तो उनके ऊपर आपका and it is collected at the time of sale and they have to file it on quarterly basis and then they'll provide TCS certificate to the buyers, ठीक है। So charged by the seller on buyers, इस तरीके से आपका ये जो काम करता है। I hope this is clear to all of you guys. एंड अगर आपका कोई भी क्वेरीज हैं सो यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप सो @textbook regulatory bodies और यू कैन स्कैन दिस QR कोड, सो जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपका PDFs एंड अदर्स सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है अबाउट RBI और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी, सो देयर इज a link given in the description box. Please do fill that particular form and our team will connect you, right? तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा, राइट? चलो तो कल हम लोग फिर से आपका मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ।
every day at 9 p.m. we are discussing one small topic and things around that particular small topic. ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे Monday to Friday means in a week you are going to learn 5 new topics. ठीक है, और ये ऐसे ऐसे बैंक बनते हुए एक महीने में, एक साल में बहुत बड़ा बैंक आपके पास होगा. एंड दीज ऑल टॉपिक आर रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन. ठीक है, ये आपके डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेंगे और आपके एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे. उस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है. अगर आपका कोई टॉपिक है, यू कैन मेंशन योर टॉपिक इनटू द कमेंट सेक्शन. आई विल कम अप with a video on based on that particular topic also. And if you have any doubts in others, you can also mention into the comment section. ठीक है, और कैसे लगा जरूर बताएं. ठीक है, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. So this is it from my side guys. Thank you for joining this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.